जितने भी सीजन होते हैं उसमें आई थिंक द बेस्ट सीजन इज आईपीएल। इस बार आईपीएल का 18 सीजन है और उससे पहले होने वाली मेगा ऑक्शंस। और मेरे साथ है रोहन जो मेरे साथ मिलकर बिकॉज इज अ ग्रेट क्रिकेट फैन और इतने आंकड़ों से खेलते हैं और आज इनको मौका दिया गया है कि he'll analyze the mega auctions coming on 24th. Possible things we are going to discuss is overseas player who could be bought here. Yeah. And then purse remaining actually with each after the tensions. Captaincy options for each team. Those who have already retained the captains will maybe go with them, and other teams who might be their captains will discuss all that. And then overall analysis about retentions and what will be the goals of each team. Ron, can we start with the possible value for players and foreign? Yeah. Foreign players? Let's start with the foreigners. Okay, foreigners. Okay, So, you can start. First player is Jack Fraser. Yeah. So Jake Fraser McGurk, he's a opening batsman, and a lot of teams will be looking for an opener. If you look at Delhi Capitals, they might look to buy him back. Then Kolkata Knight Riders need another opener for Phil Salt, and a lot of other teams as well. So Rajasthan Royals in place of Joss Butler. So his approx value in the auction that I have written is Jake Fraser McGurk for approximately 7 to 8 crores. उसने रोन एक ही सीजन लगाया. Do you think he's that good that franchises will kind of do mega thing for them? I think एक सीजन है, बट आप देखो उसका इम्पैक्ट हर मैच में. Is he playing for Australia? He is playing in the ODI series. He played against Pakistan. T20 में भी उसका डेब्यू हो चुका है. So वो पैकेज है उसके पास कि वो क्विक स्टार्ट दे सकता है, which you need in the power play. Okay. So कोई भी टीम उसके लिए जाना चाहेगी. I think. Who's second on your list? Second is Phil Salt. उसके लिए KKR ऑल आउट वापस रिबाय करने जाएगी. Unfortunately, RTM they have kept the they haven't. They have retained all 6 of their players, but I think Phil Salt का जितना impact था, that duo of Salt and Narayan at the top. And it gives you both the options of keeper and opening batsman. That's a deadly. And a potential future captain as well. He's captain for England already in the. Shreyas have gone. Yes. Who's next? Next is Joss Butler. Joss the boss. 15 to 20 crores approx value. Before you say something on Joss Butler, last season for Butler was an average season. Previous season he was like he kind of changed the T20 also. T20 is a smashers game, but he came up with innovative shots. Butler अब वो चीज रह गई है Butler में आपको लगता है? Let me tell you one thing. Okay. Last season, which was his below average season, उसमें भी उसके 200 थे. 2 सेंचुरी उसने अकेले जिता दिया था. KKR के अगेंस्ट आपको मैच याद होगा. मैं KKR फैन था, बहुत रोया था उस दिन. 200 उसने मारे थे पूरे सीजन में, अकेले जिताया था. और बटलर जिस दिन चल जाता है ना, तो उस दिन फिर उसके फॉर्म डिपेंड नहीं करता. स्पेशल शॉट्स. He's a special player. He's a wicket keeper. Yeah, and he's a captaincy option also. A lot of teams need a captain. अगर आप देख लो नीचे लिस्ट में, यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स. We'll come to that afterwards. Who's the next player on your list? So Butler approximately 15 to 20 crores उसकी वैल्यू जा सकती है. Yes, he can. He's a big player. Then David Miller, थोड़ी वैल्यू ड्रॉप हुई है उसकी पिछले कुछ सालों में. डेविड मिलर की वैल्यू कभी नहीं ड्रॉप होती. जीटी ले कोई ले, मिलर वो रहे हैं शायद एज पे आके क्लोज टू वेयर ही कैन विन द बिग गेम. ही चोक्स but otherwise a very deadly player. He's a power hitter. He is a absolute smasher and is a game changer. Yes. डेविड मिलर के लिए भी बहुत टीम्स जाएंगी. 7 to 10 करोड़ उसकी भी वैल्यू जा सकती है. ग्लेन मैक्सवेल इज द नेक्स्ट प्लेयर. इसका 50-50 केस है. मुझे लगता है बेंगलोर कहीं ना कहीं गच्चा खा गया और उन्होंने इसको छोड़ना नहीं चाहिए था. उन्होंने एक इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के खिलाफ जो शायद उनकी वैल्यू पता चलाती है. कोई भी टीम उनके लिए भागेगी. कौन लगता है आपको उनके पीछे पड़ेगा? मैक्सवेल के पीछे मेरे को लगता है दिल्ली एक तो जा सकती है. मुझे मुंबई पे शक है. मुंबई क्योंकि मुंबई खेले शायद मुंबई के. I will tell you one thing. मुंबई, पंजाब एंड आरसीबी आर द टीम्स जिनके पास एक भी फॉरेन प्लेयर नहीं है. तो वो हर मुझे नहीं लगता पंजाब मैक्सवेल के लिए जाएगी बिकॉज़ पंजाब हैड बैड एक्सपीरियंस विद हिम. बट आई थिंक मे बी बेंगलोर अगेन विल काइंड ऑफ race with other teams for. There are a lot of teams who need power hitters and Glenn Maxwell से अच्छा power hitter आपको अपने बेस्ट पे बहुत कम मिलेंगे इस ऑक्शन में. I still remember that one day World Cup game where he stood and he's standing, he scored 200. And off spin, उसके off spin का option on another day जहाँ थोड़ा turning track हो. I think when you talk of dangerous players, he is up there in the bracket. Okay, next is a very interesting choice. One of your favorite all-rounders recently, Marco Jansen. What a series he had against India. Especially he's understood his own value. He's a deadly left-arm bowler who bowls the ball both sides. Very slow he does, but with his batting, he was very special in 2 games against India. One of that South Africa lost. I think they lost both of those games. But he was very dangerous. Scored a quick fire 50. And he can be very dangerous if he walks in after 15th or 16th over. He can score a quick fire 50 and can be a set. I think वो 14-15 करोड़ तक भी. मैंने भी उसकी वैल्यू 12 से 15 करोड़ इसलिए लिखी है because ऑक्शन में सबको ऑलराउंडर चाहिए. And I think he's 3 seasons old. Yeah, 3 seasons. That's quite a good value. मार्को जेनसन के बाद 8 प्लेयर another all-rounder मिचेल मार्श. मिचेल मार्श another big player ऑस्ट्रेलिया. शायद मिशेल मार्च वो प्लेयर हैं जो शायद अपने नाम से भी बड़े हैं और शायद वो अपने साथ जस्टिस नहीं कर पाए. स्टिल ही इज अ बिग बाय एंड ये भी 15-16 करोड़ के आसपास. एंड अब क्योंकि मिचेल मार्च फिट है तो अब वो बॉल भी डालेंगे. कैप्टेंसी ऑप्शन भी है. इज अ गुड प्लेयर. तो मिचेल मार्च भी अच्छे खासे जाएंगे. उसके बाद उन्हीं के ऑस्ट्रेलियन कंपेनियन मार्कस स्टोइनिस.
स्टाइनिस अगेन, मिशेल मार्श और स्टाइनिस को रख दीजिए, ऐसा लगता Same है bracket फोटो में। कॉपी। हाँ। सो स्टाइनिस अगेन, आई थिंक लखनऊ ने उनको रिटेन नहीं किया, बहुत बड़ी गलती है। Whosoever gets Stainis will get a giant of a player. Stainis in RCB? And is a big batch winner. स्टोइनिस इन आरसीबी, Stainis in RCB can be dangerous with Kohli. मेरे को लगता है ऐसा कि आरसीबी ऑल आउट जाएगी स्टोइनिस के लिए। स्टाइनिस शांत लगते हैं, बट इज क्वाइट एन असैसिन, बहुत अग्रेसिव प्लेयर है अंदर से वो। मुझे लगता है आरसीबी और सीएसके दोनों स्टोइनिस के लिए जा सकते हैं। सीएसके में स्टोइनिस अच्छे खेलेंगे। Maybe under Dhoni will understand value of Mark Stainis, yes. Yes. अब And he can open also, given a he chance. can at 3 तो वो खेल ही सकते हैं, खेलता है जिंदगी भर। Even in the middle order, he is dangerous. 10th प्लेयर सबके फेवरेट, बट इनका भी थोड़ा 50-50 है एज के साथ। मिचेल स्टार्क, Mitchell Stark, the biggest buy in the last IPL, and I think still he's a 18-20 crore player because he's a very special left-hander. The kind of experience Mitchell Stark walks in with, he's not an asset to you. He also will be training your junior and other choices. So he's a big asset. I think. मिचेल स्टार्क की एक प्रॉब्लम जो है ना, वो है अगर आप लास्ट his ईयर inconsistency. In you know the normal games, he's very average, and when it comes to big games, he's. बट आप वही देखोगे कि अगर इस साल जैसे केकेआर जीता था तो स्टार्क उन्होंने क्वालिफायर और फाइनल तो आपको अकेले जिता दिया, लेकिन थ्रू आउट द सीजन उनकी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज थी, तो और एज भी उनके साइड में नहीं है। तो क्या आपको लगता है 15 करोड़ के ब्रैकेट से ऊपर अभी भी स्टार्क जाएंगे, या वो स्टील हो सकती है टीम्स के लिए 10-12 करोड़? बड़ा प्लेयर है, बड़े प्राइस पे ही जाएगा बिकॉज स्टार्क, पीपल अंडरस्टैंड स्टार्क व्हेन इट रीचेस द नॉकआउट गेम्स एंड सेमीफाइनल, फाइनल्स, क्वालिफायर्स, उसमें बहुत डेंजरस। तो स्टार्क का भी अच्छा खासा लगेगा। फिर आते हैं आपके कगिसो रबाडा, मतलब मैंने, आपका फेवरेट प्लेयर है रसल। हाँ। मैंने दिल्ली में गेम देखा था, रसल वर्सेस रबाडा इन सुपर ओवर, हाँ। एंड आई रेट रबाडा वेरी हाई, एंड रबाडा शायद बहुत, आई थिंक रबाडा रेड बॉल के तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हैं ही दुनिया में। व्हाइट बॉल और व्हाइट बॉल के भी वो ही इज अ चैंपियन। यू कांट डिस्प्यूट दैट। आई थिंक 10 से 12 रबाडा 14 तक भी खींच सकते हैं। फास्ट बॉलर रबाडा विल बी अ गुड बाय। यस, रबाडा विल बी गुड। आई थिंक पंजाब विल गो फॉर हिम अगेन। Punjab can go for him again. RCB can go for him. RCB need fast bowlers. KKR can go for him. yes. There are a lot of teams that will go for Wherever he him. goes, he's an asset. He's a very international bowler and very experienced. Yeah. फिर आपके 12th नंबर पे लेफ्ट आर्म पे से ट्रेंट बोल्ट, जिनकी एज साइड पे नहीं है बट बहुत बड़े चैंपियन बॉलर है, स्पेशली इस फॉर्मेट के। Bolt can never retire. Bolt always fires. Yes. And he's someone, I think even Mumbai can. I think Mumbai will go back. Mumbai always has valued left-hand bowlers who can bring the ball in and take it out. MI, RCB, Gujarat, some of these teams will go for Bolt. Especially Bolt in power play. Initial 6 overs is very dangerous. Death overs में? He always does pick wickets. कभी 2-3 अगर विकेट शुरू में ले जाते हैं, दूसरी टीम की कमर तोड़ सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट की वैल्यू मेरे को लगता है आज के डेट में भी 7 से 8 करोड़ तक तो जाएगी। मैं I'll put him at 8 to 10. 8 to 10 के ब्रैकेट में है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जो पिछले साल इंजरी की वजह से खेले नहीं बट वापस आ रहे हैं इस बार, जॉश हेजलवुड, magician, I think CSK will go for him. मुझे लगता है आरसीबी भी वापस Other teams will, but I think CSK will target him. If it comes to that stage and they still have the purse, they'll target him. हेजलवुड पे कितनी की लग सकती है आपको लगता है बेट? 7 to 10. 7 to 10 हेजलवुड भी। He'll finish maybe around 8.5, but he's a good buy. एंड लास्ट ओवरसीज प्लेयर जो बहुत महंगे जा सकते हैं वो हमारी लिस्ट में सैम करन, ऑलराउंडर। पंजाब ने छोड़ दिया उनको, हालांकि थोड़ा शौक थे हम, but Sam I'm Curran, not a big fan of Sam Curran though, but he's a big very player. good utility player. I Young think भी he'll है। still go for 8 to 12. हाँ, मेरे को लगता है 15 तक भी जा सकते हैं क्योंकि टीम्स आर लुकिंग फॉर ऑलराउंडर्स। I dispute that, but still you never know. It's IPL mega auctions. अब ओवरसीज के 15 प्लेयर तो हमने बात कर लिया, अब आ जाए इंडियन पे, जिन पे सबसे ज्यादा लगेगी बेट। मैं जानता हूँ आप स्टार्ट कहाँ से करने वाले ऋषभ पंत, कोई डाउट ही नहीं है। हो। ऋषभ पंत, I think 20 करोड़ के ऊपर लगेगा पंत, मेरे को Delhi ऐसा लगता है। Capitals leaving him could not be for money. हाँ, वो उन्होंने खुद ट्वीट भी किया ऋषभ पंत ने। It's not for money. I think Pant wanted to go. And if Pant wants to go, I think he's spoken to his ex-keeper and fellow wicket-keeper Dhoni, and I think CSK will buy Pant at any price. अच्छा, They're looking at a captain. एज अ केकेआर फैन आई विल टेल यू वन मोर रिपोर्ट कि ऐसा न्यूज आया है, ट्विटर पे भी मैंने पढ़ा है कि केकेआर आर गोइंग ऑल आउट फॉर ऋषभ पंत। But I think CSK is not going to leave this सीएसके, race. केकेआर, उनके लिए तो हर टीम ही जाएगी। मुझे लगता है धोनी की एक चीज देखेगी यारोन की जब when धोनी सेट्स एन आई, अर्जुन की तरह जब वो आंख रखते हैं तो फिर वो एक प्लेयर पे सारा पर्स खाली करने का दम रखती है सीएसके। तो आपको लगता है कि आई थिंक ऋषभ पंत वॉकिंग इनटू सीएसके। सीएसके, केएल, श्रेयस किसी के लिए नहीं, सीधा ऋषभ पंत के लिए जाएंगे। सीएसके मे गो फॉर केएल बिकॉज़ केएल को आरसीबी भी टारगेट करेगी। सो सीएसके फॉर केएल over Rishabh Pant, I don't see that happening because Rishabh Pant is going to be their first choice. एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे, इज ऋषभ पंत गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द ऑक्शन एवर? 18 करोड़, 25 करोड़ हाईएस्ट है। If you ask me, is Rishabh Pant the most overrated player ever? Yes, but नहीं, the but kind किया of things he has done in the test games. Yeah.
टेस्ट मैचेस इज अ वेरी गुड। आप देखो इंडियन प्लेयर जो कैप्टन भी हो, कीपर भी हो, T20s he has not done justice to his talent, and that's why Delhi But नाम Capitals brand think बड़ा है of ना? leaving. He's a big brand, I think, and then he has other things to him. Oh, he kind of उनकी और बड़ी चीजें हैं जो शायद उनको क्राउड के लिए फेवरेट बनाती हैं और गैलरी के लिए भी खेलते हैं वो। तो पंत महंगे तो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। 15 के ऊपर तो वो जाएंगे, 20 से ऊपर जाएंगे। 20 के ऊपर पंत जाएंगे ही। इंडियन प्लेयर, विकेट कीपर, कैप्टन ऋषभ पंत का है। उसी के बाद ऋषभ पंत से थोड़े ही नीचे होंगे जो शायद, वो हमें लग रहा है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों। इनकी बात आप क्या करोगे? केएल राहुल को जब हमने 7 साल पहले देखा था, आई थिंक ही इज बेटर आर्सेनल देन इवन अ विराट कोहली। बस ऐसे शॉट्स हैं, लेकिन जाने कि पिछले 2-3 साल से क्यों डर कर वो खेल रहे हैं, और ऑफ स्टंप के बाहर उनका ना पैर चलता है ना बल्ला चलता है, और अटक अटक के खेलते हैं। और केएल राहुल शायद उनको अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाना पड़ेगा उनको। थोड़ा 15 करोड़ प्लेयर, he is even 20 crores player. He is an asset to any team if KL plays like KL. KL we know, but KL क्यों चोक कर जाते हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है? उनके पास सब कुछ है, इज अ बिग स्टार, ही कुड हैव बीन इंडिया कैप्टन आफ्टर रोहित, but things have kind of slipped for him. I don't know why, but he's still a 15-20 crore buy. क्योंकि वही है, केएल राहुल की रिपोर्ट्स आ रही हैं आरसीबी जाएगा, उनके लिए ऑल आउट जा रहा है। विराट कोहली के साथ अगर केएल राहुल ओपन करते हैं, Virat and KL, That's a I think they are destructive- very good friends also. Yeah. That can be destructive. तो केएल राहुल भी 15 करोड़ के ऊपर तो जाएंगे ही आराम Yes, से। definitely 18-20. देन अगर आप बात करें तो यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर की 8 to 12 करोड़ मेरे को लगता है उनका भी जाएगा। 8 years back, I thought he's an overrated player, but But now now I he's think proving he is wonderful. He is Against you- justice नहीं हुआ है, और शायद Washington Sundar will be a big buy and definite asset to any team he walks into. अगर अभी आप देखो न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज थी, आराम से 6-6 5-5 विकेट वो हर उसमें इनिंग्स में लिए जा रहे हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। This boy can open. Yeah. This boy, when the chips are down, can come and stay and then hit big shots, and he can take wickets. An excellent fielder. What more do you want? वॉशिंगटन सुंदर 10 करोड़ प्लेयर तो आराम से हैं। He's a like 3-dimensional player. 3 डायमेंशनल प्लेयर। वॉशिंगटन सुंदर की बात करते हैं हमारे अर्शदीप पाजी की, अर्शदीप सिंह। बड़े बॉलर है बहुत। 4 years back, if you would have spoken about Arshdeep, he couldn't even play his 19 game. 19 का वर्ल्ड कप अर्शदीप बाहर बैठे, और नगरकोटी और मवी जैसे लोग स्टार से, और सी देखिए किस्मत, आज शायद अर्शदीप इंडिया के बेहतरीन T20 बॉलर्स, लीडिंग इन द वर्ल्ड, एंड ये होती किस्मत। देखो डेस्टिनी जब आपको देती छप्पर फाड़ के देती 15-16 करोड़। आपको लगता है he will be in the same bracket, ironic, but he'll be in same bracket with Mitchell Starc. एग्जैक्टली, ऑब्वियसली उससे ज्यादा भी हो सकता है। इंडियन बॉलर है ना, इंडियन बॉलर, लेफ्ट हैंडर, वेरी माइजर टुवर्ड्स द एंड, 18-20 तो जब वो डालते हैं तो आसान नहीं होता रन लेना। आपको लगता है अर्शदीप सिंह के लिए पंजाब वापस आरटीएम कर सकता है? मेरे को लगता है मुझे नहीं लगता अर्शदीप अब पंजाब में जाना नहीं चाहिए। जाएंगे। शायद वो नाराज होंगे क्योंकि रिटेन नहीं किया। देखो क्या होता है, एक फास्ट बॉलर ना जितना मर्जी बाहर से क्वाइट लगे, उसमें एक ईगो होता है। तो फास्ट बॉलर की ईगो के वेरी साइलेंट बट होती डेफिनेट है। तो आई डोंट थिंक अर्शदीप वॉकिंग इनटू पंजाब अगेन अनलेस दे गिव हिम 26 to 27 crores, which is not happening. अर्शदीप के लिए कौन कौन जा सकते हैं फिर? I think KKR might go for him because if they News don't भी है। get Starc, they have good हर्षित राणा उनके साथ है, तो अर्शदीप उधर आएंगे तो, और उनके पास यंग बॉलर्स का स्ट्राइक है, और उसके साथ अगर Starc आ जाते हैं अर्शदीप के साथ, you think two deadly left बट handers। स्टार्क अर्शदीप दोनों को केकेआर खरीदने जाएगा क्या? साथ देखो, अब दो T20 left arm अगर आपके pacers। पास 8 ऐसे ओवर हो जाएं जो दूसरी टीम चोक होती है, तो यू आर बेसिकली प्लेइंग विद द टीम जो 12 ओवर का मैच खेल रही है और आप 20 ओवर खेल रहे 12 भी नहीं ना, वरुण नारायण है उसके बाद, वो भी अपने डिस्ट्रक्टिव अलग है। तो आप भूल क्यों रहे हैं वो दूसरे वाले? उस पर दोबारा बात करेंगे जो सुनील नारायण, वरुण नारायण, वो तो बोल ही रहा हूं। वरुण नारायण। तो फिर अर्शदीप की भी 15 से 18 करोड़ हमने लिखा है कि इतने तो वो कम से कम जाएंगे। उसके बाद आते हैं एज जिनके साइड में नहीं है, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी मिस कर रहे हैं। इन्होंने अभी वापस कमबैक किया है अपना रणजी ट्रॉफी में, रणजी नहीं, अभी बंगाल के लिए किसमें खेल रहे थे, उनका नाम है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी के बारे में शायद मंजरेकर ने भी बहुत बड़ा मूव खोला है कि जिस पर उन्होंने स्टोरी भी डाली है। और शमी ने कहा है कि ये अपना फ्यूचर जानते हैं क्या, इनको बताइए। शमी देखो वो वर्क हार्स है, अगर शमी ग्राउंड पे खड़ा है तो शमी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। सही बात है। इफ शमी इज इवन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ही इज वर्थ एवरी पेनी यू स्पेंड ऑन हिम, एंड मुझे लगता है शमी अभी भी 12 से 14 तक जाएंगे, 15 तक भी टच। इंडियन कंडीशंस में इंडियन फास्ट बॉलर विद एक्सपीरियंस, ही कैन चेंज गेम्स फॉर यू। शमी के लिए क्या आरसीबी जा सकती है? शमी के लिए सीएसके भी जा सकती है, सीएसके, आरसीबी, दिल्ली जा सकती है, एमआई जा सकती है। शमी के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा बायर्स होंगे उस सेंस में। शमी के बाद आते हैं
ये हालांकि आई थिंक थोड़े लोगों को लगेगा कि ये नाम क्यों लिखा है, बट मेरे को लगता है बहुत अच्छी और स्मार्ट बाय हो सकती है, वो है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार एक ऐसे बॉलर हैं जिनको शायद मैं बहुत अच्छा बॉलर नहीं समझता, लेकिन जब वो पिच पे गेंद डालते हैं ऑर्डिनरी से लगते, कभी भी 2-3 विकेट एक साथ ले जाते हैं। मुझे उनकी बॉलिंग जबकि समझ नहीं आई। इसी लाइन में मैंने प्रवीण कुमार को देखा, प्रवीण कुमार दोनों तरफ गेंद को घुमाते पर वो यॉर्कर्स अपनी बहुत अच्छी, लेकिन मुकेश कुमार कभी तो इंडिया को उन्होंने ऐसी ऐसी गेम्स हवाई लगता है कि ये गली के भी बॉलर नहीं है, और कभी कभी दिल्ली के लिए बॉल करते हो वो ईशांत शर्मा से बेहतर गेंद डाल रहे होते हैं। सो मुकेश कुमार इज अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर। यस यस, इज अ गुड बॉलर मुकेश कुमार। तो 7 से 10 करोड़ की ब्रैकेट में कहीं भी फॉल कर सकते हैं। अगर पर्स है किसी के पास तो 10 करोड़, और नहीं है तो 7 करोड़ तक तो शायद वैल्यू जाएगी, क्योंकि इंडियन बॉलर हर एक टीम को चाहिए ही। मुकेश कुमार की वैल्यू भी होगी। उसके बाद आते हैं स्पिनर पे, अपने दो सबसे एलीट इंडियन स्पिनर्स युजवेंद्र चहल और रविचंद्रन अश्विन, जिनको आरआर ने छोड़ दिया। मेरे को समझ नहीं आ रही युजवेंद्र चहल के साथ क्या हुआ पिछले 2-3 हफ्तों में। उसकी शक्ल अच्छी नहीं, या कुछ ऐसी चीज है जो हम नहीं समझते। ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर्स, ही इज आउट ऑफ द इंडियन टीम, अंडरस्टूड, बट इवन आईपीएल franchise is not retaining him, is beyond understand। वो कैसे क्या हो रहा है? आरआर ने कैसे छोड़ दिया चहल को? 7-8 करोड़। मेरे को लगता है चहल 10 करोड़ के ऊपर के प्लेयर है। जा सकते लेग स्पिनर्स नहीं मिलते यार ऑप्शन में। एनीवन हु अंडरस्टैंड्स लेग स्पिन एंड अंडरस्टैंड, मुझे मतलब चहल शायद खुद ही सीरियस नहीं है। मतलब चहल इज अ 10 करोड़ प्लेयर, बट 7-8 तो वो जा रहे हैं, आगे 10 करोड़ आगे देखते हैं क्या। और उसके बाद जिनको आरआर ने छोड़ दिया चहल के साथ साथ रविचंद्रन अश्विन, इनका आपको लगता है? देखिए, अगर मैं आई एम बायस्ड व्हेन इट कम्स टू अश्विन बिकॉज़ ही इज अ साइंटिस्ट, तो मैं तो कहीं ये सोच रहा था कि पर करेगी नहीं। मैं चाहता था कि सीएसके शुड गो फॉर अश्विन एज अ कैप्टन आल्सो। देखो एक्सपीरियंस जो टेबल पे लेकर, उनके पास गायकवाड़ ऑलरेडी है। नहीं, गायकवाड़ वो कैप्टन नहीं है। अश्विन इज इन धोनीज मोल्ड। वो बिल्कुल साइलेंट है, एक्सप्रेशंस नहीं दिखाते, इज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव प्लेयर एंड अ गुड स्टूडेंट ऑफ सिचुएशंस। एंड आई थिंक अश्विन गोइंग टू सीएसके देखो आप कहेंगे 4 से 5 करोड़ में जाएंगे, पर अश्विन नहीं 5 से 7 करोड़ तक, 7-8 के ब्रैकेट में है। अश्विन इज अ गुड बाय एंड ही इज वेरी गुड विद द बैट। लोगों ने उनको ट्राई नहीं किया, वो 6 नंबर पे भी बैट कर सकते। एंड मैं एक और बात बताना चाहूंगा, अश्विन अगर सीएसके जाते हैं दैट कुड बी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स, क्योंकि अश्विन अगर 7 गेम चेपॉक में खेलेंगे, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में हिज टीम बिकेम द विनर। अगर अश्विन 7 गेम चेपॉक में खेलेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा करके दे सकते हैं, आपको अकेले मैच जिता के दे सकते हैं, बैट बॉल दोनों से। तो अश्विन की वैल्यू सीएसके में ही बेस्ट रहेगी मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी वेयर ही गोस। आरसीबी भी लिस्ट है, आरसीबी ओनली अंडरस्टैंड्स अश्विन लाइक नो वन डज। उसके बाद अवेश खान, इंडियन पेसर, गुड प्लेयर, यॉर्कर्स अच्छे डालते हैं, डेथ में भी अच्छे बॉलर हैं बहुत। तो अवेश खान का हुआ 19 में था, उसके बाद 2-3 साल मैंने उसको पिछला साल अच्छा था उनका। वो इंडिया भी खेल रहे हैं, बट आई डोंट रेट हिम वेल, बट ही स्टिल फेच मनी। 4 to 6 करोड़, 7 करोड़ ज्यादा 8 तक भी जाएंगे, लेकिन आई डोंट लाइक हिम एज अ बॉलर, दैट्स वेरी पर्सनल। अवेश खान की बात करते हैं, बात मोहम्मद सिराज की। इनको आरसीबी ने समहाउ छोड़ दिया है, बट आई थिंक आरसीबी विल गो फॉर हिम। दे विल वो पूरे आरटीएम कर सकते हैं क्या आरसीबी? करेंगे, क्योंकि देखो सिराज को आरसीबी नहीं छोड़ सकती। सिराज ने बहुत ही इमोशनल होकर क्रिकेट खेली है, और सिराज की जो क्रिकेट है वो कोहली के आसपास घूमती है। आई थिंक यू टेक विराट आउट ऑफ सिराज सिस्टम एंड देयर इज नो सिराज। अगर जब भी सिराज को पेप करना होता है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, देयर इज ऑलवेज विराट। टेस्ट टीम में भी मोहम्मद सिराज को विराट कोहली ने लॉन्च किया था। सिराज विराट कोहली के बिना मेरे ख्याल में ऐसा जिन है जो चलेगा नहीं, तो इसलिए आरसीबी भी अंडरस्टैंड करती है बात है ना। आरसीबी जानती है सिराज की वैल्यू, कितनी मेहनत उन्होंने आरसीबी के लिए की है। सिराज 10 करोड़ से ऊपर जाएंगे। इज द मेन फ्रंटलाइन इंडियन बॉलर एंड इज डेफिनेटली गोइंग टू। सिराज के लिए तो बहुत टीम्स जाएंगी। सिराज के बाद बात करते हैं वेंकटेश अय्यर की। इनको भी केकेआर ने उनको छोड़ना पड़ा। देखो कुछ प्लेयर हैं, जैसे वरुण चक्रवर्ती का नाम लेते हो तो यू इमेजिन हिम इन दैट पर्पल केकेआर जर्सी। वेंकटेश अय्यर जब आप आंखें बंद करके भी देखते हो तो यू कैन सी हिम प्लेइंग फॉर केकेआर। केकेआर डेफिनेटली उसके लिए जाएंगे, और अगर केकेआर नहीं जाती तो आई थिंक समवन सिटिंग विद अ बिग पर्स लाइक पंजाब तो ही इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर अप द ऑर्डर। केकेआर हैज नॉट यूटिलाइज्ड हिज बॉलिंग। He even played for India and bowled, so he can be a very good all-rounder. And I think Punjab will go. उन्होंने फाइनल अकेले जिता दिया केकेआर को, वेंकटेश अय्यर ने पूरा डोमिनेट करके जिताया था। तो वेंकटेश अय्यर भी मेरे को लगता है 9 to 12 करोड़ की ब्रैकेट में आराम घोड़े खोल देगी कि उसकी बात है। उसके बाद एक और प्लेयर जो केकेआर से अब विदा ले चुके हैं वो है नीतीश राणा। वेरी वेरी गुड प्लेयर। नीतीश राणा 2 seasons back was KKR captain, stand-in captain. And Shreyas Iyer was injured. And I think like I said for Iyer, नीतीश राणा भी शायद बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड और बहुत ज्यादा कमिटेड है केकेआर उनके सिस्टम में भी, और कैप्टनसी ऑप्शन भी है। केकेआर जाएगी उसके लिए। नीतीश राणा के लिए मेरे को लगता है पंजाब बीइंग अ दिल्ली बॉय, ही इज प्लेइंग रणजी दिस सीजन फॉर यूपी, बट मुझे लगता है कोहली अंडरस्टैंड्स नीतीश राणा's value, उन्हें लेफ्ट हैंडर। मेरे को लगता है एक और टीम जो जाएगी नीतीश राणा के लिए वो होगी हैदराबाद, क्योंकि उन्होंने राहुल त्रिपाठी छोड़ दिया, अब्दुल समद छोड़ दिया, सारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन छोड़ दिए, बट दे माइट गो फॉर समद अगेन। नहीं देखो आरसीबी बिकॉज़ आई से कोहली दिल्ली बॉय, नीतीश राणा सेम एग्रेशन जेल्स विद कोहली, एंड नीतीश राणा बहुत अग्रेसिव प्लेयर है। आई सी हिम वॉकिंग इनटू केकेआर और आरसीबी। अब
बट मेरे को लगता है कि यार नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर में से किसी एक को ही बाय बैक कर पाएगा, क्योंकि उतना पर्स ही नहीं है उनके पास। उनके पास ऑक्शन पे जाते जाते सिर्फ आप देखें तो 51 करोड़ बचे हैं। तो क्या वो वेंकटेश अय्यर, श्रेयस नहीं, फिल सॉल्ट, नीतीश राणा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट डे, किसका किस पे पर्स जल्दी खर्च हो जाता है, कौन किसी के लिए जाके अपना पर्स गवा देता है। तो सारे समीकरण एंड में जाके बनेंगे और कुछ चीजें हैं जो एंड में सेटल होंगी। देखो वेंकटेश अय्यर ये कुछ प्लेयर्स हैं, ये सेकंड राउंड में जाके क्लैरिटी होगी। इस बार शायद थोड़ा अलग भी है ऑप्शन, क्योंकि जो मार्की प्लेयर्स का सेट है ना, उसमें तो मेरे को लगता है सारी टीम स्टार्टिंग में बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए चली जाएंगी, और एक बार उनका कोर सॉर्टेड हो गया तो आई थिंक वो सोचेंगे कि भाई 1-2 करोड़ की स्टील्स ले लें, क्योंकि उनका कोर एक पॉइंट के बाद सॉर्टेड है। 18 प्लेयर की आपको स्क्वाड बनानी है, एक बार आपकी प्लेइंग 11 सॉर्टेड है तो आप देखते हैं कि 1-1, 2-2 करोड़ की आपकी स्टील्स मिल जाए, उससे ज्यादा आप नहीं देखते हैं। तो नीतीश राणा का आपको देखना पड़ेगा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग हो सकता है उनका थोड़ा। फिर आ जाओ आप, आपके 2 इंडियन पेसर्स पे अंडररेटेड है, खलील अहमद और वैभव अरोड़ा, इनका क्या कहना है? Khalil Ahmed above average. He should have been playing for India, but maybe some injury issues. He's a very good bowler, and he's definitely much bigger than his name. When he actually bowls in a match situation, I think very good bowler. एंड काफी टाइट भी बॉल करते हैं जब अपने लय में होते हैं। सेम विद वैभव अरोड़ा शायद हिमाचल से आते हैं, एंड ही हैज अ हार्ड बॉल। ऐसे लगता है वैभव अरोड़ा आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। केकेआर को जिताने में बहुत बड़ा पार्ट था, बहुत बड़ा रोल, हार्ड बॉल करते हैं काफी ज्यादा। ट्रेविस हेड को फाइनल में जो उन्होंने आउट किया था। देखो इंडियन कंडीशंस में आप कहते हैं कि मीडियम पेसर्स नहीं चलते, पिछली आईपीएल में प्रूव किया मीडियम पेसर ही मैच जिताते हैं। हर्षित राणा की तरफ वैभव अरोड़ा, और शायद खलील तो शायद काफी महंगे। 5 करोड़ के प्लेयर तो ये दोनों ही हैं, इससे अबव है, उससे अबव, बिकॉज़ फास्ट बॉलर्स की वैल्यू रहती है। लिस्ट तो खत्म हो गई, पर अगर आप पर्स की बात करें ना हर एक टीम की, 10 टीम का मैं एक बार पर्स बता देता हूं और आप उस हिसाब से बताओ कि कौन किस कैप्टन के लिए जा सकता है, क्योंकि कैप्टनसी बहुत टीम्स को चाहिए। अगर आप देखो कोलकाता को कैप्टन चाहिए, दिल्ली को कैप्टन चाहिए, आरसीबी अगर कोहली से कैप्टनसी नहीं कराती है तो उनको भी कैप्टन आरसीबी आई थिंक कोहली इज गोइंग टू कैप्टन। मेरे को लगता नहीं, unless they get KL Rahul. If they get KL Rahul, I think Kohli can be guiding him as a mentor. But अगर किसी फॉरनर के लिए अब आरसीबी नहीं जाएगी फॉरेन कैप्टन, क्योंकि उनके जो कैप्टन थे फैफ, वो उनके लिए पंजाब जा सकते हैं। पंजाब जा सकते हैं, फैफ शायद 6-7 करोड़ की ब्रैकेट में आज भी जाएंगे। उनकी प्रॉब्लम कुछ लोग की हमने बात नहीं करी, 3 साल जो उनके एश्योर हैं कि नहीं, स्टेट 3 साल एश्योर हैं कि नहीं, उसका द प्रॉब्लम। अदरवाइज देखते हैं उनके लिए क्या होगा। फैफ के साथ साथ अगर आप नाम ला ही रहे थे, एक और ऐसे फॉरेनर हैं जो जिनकी वैल्यू शायद थोड़ी कम हो जाए क्योंकि उनके साथ एज नहीं है, पर डेविड वार्नर, डिस्ट्रक्टिव ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनका क्या कहना है? When you look at David Warner, I think his age has freezed for last 8 years. वो वैसे ही फिट है। पिछला साल बहुत खराब भी था तो वो शायद वो ऐसे प्लेयर हैं जो और 5-6 साल भी खेलते हैं। और वार्नर, मैं जब बताऊं वार्नर CSK, आरसीबी हर एक प्लेयर ही आरसीबी चला जाएगा। क्यों टारगेट करेगी, मैंने क्या लिया, पर आरसीबी डेफिनेटली पंजाब सुपर किंग्स उसके लिए शायद जाए, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग वाला फैक्टर भी आता है वार्नर के लिए। वार्नर कैन बी वेरी डेंजरस इन मुंबई। वो रोहित और वार्नर की बहुत स्ट्रेटेजी के लिए चलती है कहीं। मुंबई तो बटलर के लिए जा ही रही है, जहां तक बटलर के लिए जा रहे हैं। अगर बटलर नहीं मिलता तो वार्नर अगर उनको मिल जाता, यू कैन अंडरस्टैंड रोहित एंड वार्नर। फिर सूर्या, हार्दिक, वो डिस्ट्रक्टिव है। उससे एक और बात हम याद आती है, आपको क्या लगता है ये स्ट्रेटेजी? डू यू थिंक दिल्ली विल गो फॉर वार्नर? नो, नहीं। ओके, द स्ट्रेटेजी टू रिटेन ऑल 4 ऑफ रोहित, हार्दिक, सूर्या और बुमराह, ये कैसे सक्सेसफुल हुई होगी? उनके पास तिलक भी है। और भी तिलक ने बैक टू बैक 200। दे हैव इंडियन बैटिंग ऑर्डर, तो उनको चाहिए क्या? बॉलर्स के नाम पे 3 बॉलर्स का एक बॉलर बुमराह के रूप में उनके पास है। I think Mumbai is going to be a giant team this season. बट जैसे न्यूज आ रही थी कि हार्दिक चले जाएंगे, सूर्या चले जाएंगे, वो हुआ नहीं, चारों को रिटेन कर लिया। शायद कहीं ना कहीं बुद्धि चली है, और रोहित की जो कूल एंड काम है उसमें रोहित समझे, उन्होंने सिचुएशन संभाली, और शायद इंडिया का T20 वर्ल्ड कप जीतना और ऐसी सिचुएशन से वापस आना, या 30 रन चाहिए थे और फिर हार्दिक का रोहित को गले मिलकर रोना और टीम की बॉन्डिंग, दैट्स आई थिंक अब सेटल्ड है। IPL जो 2024 वाला था, दैट्स ओवर एंड बियॉन्ड, दे आर बियॉन्ड दैट। और एक और टीम जिसको कैप्टन चाहिए यहाँ पे, वो हो सकती है लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर वो पूरन को कैप्टनसी के लिए कंसीडर नहीं, लखनऊ सुपर जायंट को कैप्टन से ज्यादा ओनर चाहिए। अगर उनकी उन्होंने तो केएल राहुल के लिए बोल दिया कि वो सेल्फिश प्लेयर है। केएल राहुल को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। केएल राहुल, आई थिंक ओनर होने चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, बट ही इज सो विजिबल इन द गैलरी, ही इज सो एनिमेटेड, आई थिंक नो कैप्टन कैन प्ले, सो दे नीड अ कैप्टन, बट आई थिंक दे हैव पूरन कैप्टनशिप कर सकते हैं। पूरन कैप्टनशिप करेगा, बेस्ट T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड है वो, तो वो पूरन के लिए जाएंगे, पूरन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड्स द फ्रेंचाइजी फॉर लास्ट 3 अगर इयर्स। आप देखो यहाँ पे पर सबसे ज्यादा पंजाब के पास है, तो इफ पंजाब आर टेकिंग द मोस्ट पर्स इन द ऑक्शन, डज दैट मीन वो सबसे बेस्ट प्लेयर्स भी लेके जाएंगे? नॉट ऑलवेज। पंजाब एंड आरसीबी के पास सबसे पर्स है। सी, आपको अच्छे प्लेयर 3 चाहिए, उसके बाद टीम उसके आसपास घूमती है, आपने 4 से 5 रिटेन कर रखे हैं। हाँ जी। सो अगर आपकी कोर सेट है तो पर्स
अनलेस यू यूज इट वाइसली, पर्स मींस नथिंग। आप एक ही प्लेयर पे अगर 30 करोड़ 110.5 करोड़ है पंजाब के पास यार, वो किन किन को नहीं खरीद सकते। 110 लगता बहुत है रोहन, जब बट उधर शुरू होती बिल्डिंग, आपने एक 30 का खरीद लिया, एक 22 का खरीद लिया, तो आपके 50 तो यहीं से चलेगा। तो इसलिए लगता उस दिन देखना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली कौन प्लेयर ऊपर आता है, और आप लकी हो कि उसके लिए जाते हो। समटाइम्स क्या होगा, कोई बहुत अच्छा प्लेयर ऊपर आएगा, उसके लिए बिडिंग वार लगेगी, तो पंजाब कैन ओवर स्पेंड ऑन अ प्लेयर। सो पर्स इज वेरी मैजिकल थिंग। यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के लिए अब आ गए राहुल द्रविड़। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूं, राजस्थान रॉयल्स की रिटेंशन पे लोग बहुत क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ध्रुव जुरैल और शिमरन हेटमायर को रिटेन किया है और बटलर और चहल को नहीं किया। जहां तक ध्रुव जुरैल की बात चल रही है, जो न्यूजीलैंड के साथ अपनी सीरीज गई, उसमें उसको खिलाना चाहिए था। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन, ही हैज बिग शॉट्स, एंड राहुल द्रविड़ जब एज अ कोच आपके पास आते हैं, इफ ही पिक्स योर, if they have consulted him, of course they have consulted। संजू सैमसन को रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उसको कंसल्ट करते हो राहुल द्रविड़ को, राहुल द्रविड़ का तरीका अलग है। हाँ जी, he is a very methodical, he is not a गौतम गंभीर। so कुछ ना कुछ सोचकर I think RR will be a team to look at, because not just for the kind of squad they will put, but the coach they have. They have India's T20 World Cup winning coach with them, and a legend in himself, one of the best Indian cricketers, Rahul Dravid as a coach. So this time RR is a force। क्या अगर वापस बटलर, अश्विन, चहल जो जिन्होंने इनको छोड़ा, बोल्ट, इनके लिए वापस जा सकती है क्या? You never know Dravid's mind. He is someone, उन्होंने अपनी गोटियां बिठा कर, उन्होंने अपना चेस का टेबल बना रखा हो। और किस टीम की हम यहाँ पे, गुजरात टाइटंस को अब शुभमन गिल की कैप्टनसी लास्ट ईयर उतनी अच्छी थी नहीं, और उन्होंने बहुत प्लेयर छोड़ दिए हैं, 2 अनकैप प्लेयर ही रखे हैं। शुभमन गिल की कैप्टनसी भी अच्छी नहीं थी, और शुभमन गिल के लिए कुल मिलाकर ये साल भी अच्छा नहीं रहा। जैसे कोई पनौती सी लग जाती है ना। शुभमन गिल शायद रोहित के बाद वन ऑफ द कैप्टन चॉइस से, वो अभी पर कोई, यू नेवर नो विद द सीजंस, न्यू IPL सीजन, कल देखते हैं क्या होता है बॉर्डर गावस्कर में भी। शुभमन गिल इज अ बिग प्लेयर। तो गुजरात टाइटंस की जैसे आप देखो, उन्होंने राहुल तेवातिया को 4 करोड़ में एज एन अनकैप्ड प्लेयर स्टील पे बाई किया है, वो उनके लिए कितनी अच्छी बाई। राहुल तेवातिया ना कोई लकी मैस्कॉट्स होते हैं। राहुल तेवातिया ऐसे मैच आता है, वो कुछ नहीं करेगा, 16 रन मारेगा, लेकिन वो 16 रन इतने क्रूशियल होंगे, मैच गेम बदल देंगे। तो इसलिए राहुल तेवातिया को उन्होंने ट्रेन किया, एंड वो बॉलिंग बहुत। अब मुझे बात बताओ, आज 2025 में हम बैठे हैं, अगर जब हम 2035 में डिस्कशन कर रहे होंगे, क्या आपको लगता है MS धोनी तब भी रिटायर हो गए होंगे या नहीं हुए होंगे? MS Dhoni cannot retire out of Indian cricket. He will be in some role. So take Dhoni out of CSK. I don't think CSK सबसे बड़ा ब्रांड है CSK, but take Dhoni out of CSK. I think there is no CSK. But धोनी की आप देखो एक चीज, uncapped 3 साल के लिए रिटेन किया है। IPL ऑक्शंस हुए थे, he was one of the icon players, and now uncapped. कैसी स्ट्रेटेजी मारी है मास्टर स्ट्रोक की, पैसा उसको नहीं चाहिए, but I still see him even sitting in that dugout and Chennai unbeatable। बट क्वेश्चन ये है, 3 साल के लिए रिटेन किया है एज एन अनकैप्ड, क्या वो 3 साल देंगे या उनका लास्ट? अगर उसकी फिटनेस रहती है तो महेंद्र सिंह धोनी 50 की उम्र पे भी खेल सकते हैं। सो इज अ वेरी डिफरेंट प्लेयर। सही बात है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी 55 करोड़ हैं ऑक्शन में, तो डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्र, 2 लेफ्ट हैंडेड गो फॉर, बिकॉज़ टेस्टेड प्लेयर्स हैं उनके लिए, और मुझे लगता नहीं कि रचिन के और कॉनवे के लिए कोई इतनी ज्यादा अटैक करने जाएगा और कुछ करेगा, तो इसलिए चेन्नई कैन इजीली बाय देम बैक। देयर आर सम ऑफ द प्लेयर्स व्हिच यू हैव फ्रेंचाइजीज वेरी स्मार्टली लेट देम गो, बिकॉज़ उनके लिए ना बिडिंग वॉर नहीं होने वाली, तो फ्रेंचाइजीज कैन गेट देम बैक एट गुड, मे बी गुड प्राइसेस देन दे वर रिटेन्ड। सही बात है। जैसे SRH ने आप देखो ना, अपना ओवरसीज का पूरा कोर रखा है, पैट कमिंस हेड क्लास, नो वन से समद अच्छा, उनको उन्होंने 4 करोड़ में छोड़ा है। तो अगर समद उनको मिलेंगे, हो सकता है 4 से कम मिल जाए, और महंगे से महंगे 5.5 में मिल जाएंगे। तो एक और बात है, SRH ने सिर्फ 5 रिटेन किए हैं, एक RTM का ऑप्शन उन पे है, वो मयंक मार्कंडे या अब्दुल समद पे लगा सकते हैं। अब्दुल समद भी आपको RTM होते, उमरान मलिक के लिए KKR जा रही है। लेट्स डिस्कस उमरान मलिक देखो, एक ऐसा बॉलर है जो आया तो था तूफान बनकर, लेकिन इन समुद्रों के थपेड़ों में कहीं खो सा गया। पहले इंडियन टीम के बिल्कुल एज पे था, वर्ज पे था आने के लिए, और अब शायद वो JNK की रणजी में भी नहीं खेल रहे, इंजरी है शायद, NCA में देखे गए थे। बट उमरान मलिक इज अगेन वन फास्ट बॉलर, देयर कैन बी बिडिंग वॉर। और ये न्यूज़ है KKR भी उनके लिए जा रहा है, उमरान मलिक KKR उनके लिए जा रहा है। दे हैव हर्षित राणा, रॉ पेस है, हर्षित राणा चेंज अप पेस, वैभव अरोड़ा के लिए रिप्लेसमेंट भी चाहिए। कुछ तो उमरान मलिक ने भी पिछले 2 सालों में किया होगा, बिकॉज उनको जब बाहर किया गया था और कमिंस ने उनको पूरा सीजन नहीं खिलाया, एक मैच खिलाया था शायद, तो दैट वाज एन इंसल्ट, बट वेरी गुड इंडियन टैलेंट, एंड आई थिंक उनके लिए भी बिडिंग वॉर हो सकती है। सही बात है। यहाँ पे अगर आप देखें हर एक टीम का, दिल्ली कैपिटल्स के पास 75 करोड़ है, लखनऊ और गुजरात दोनों के पास 69 करोड़ है। अपने पर्स को इनको ठीक से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ज्यादा प्लेयर्स रिटेन नहीं करे हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने तो अक्षर पटेल को 16 पॉइंट कुछ करोड़ में रिटेन कर दिया एज देयर फर्स्ट अटेंशन। लखनऊ का कोच कौन है? लखनऊ का कोच मैं श्योर नहीं हूं अभी इस साल कौन है,
मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, बट इतना मेरे को पता है उन्होंने जो प्लेयर्स रिटेन करे हैं उनकी वैल्यू ऑक्शन में उससे कम होगी जितने में वो रिटेन हुए। अगर आप देखें अब ये मयंक यादव आए हैं, इनको 11 करोड़ देना, रवि बिश्नोई को 11 करोड़ देना, क्या आपको लगता है ये ऑक्शन में इतना डिजर्व करते हैं? पूरन को तो 21 करोड़ दिए, समझ आता है। मयंक यादव का क्या हो गया था, मयंक यादव ने 150 की पिछले बारी काफी ज्यादा बॉल्स डाली, दो ही गॉट इंजर्ड। इंजरी क्या कंसर्न होता है, है। 150 हर कोई नहीं डालता और रोज रोज नहीं डालता। क्यों उमरान मलिक 156 158 डालकर भी बाहर हो गए, अब मेरे को वो चीज ही समझ नहीं आ रही। लेकिन मयंक यादव को बहुत ज्यादा रेट कर दिया गया और 11 करोड़ की, वो इस बार 15-16 करोड़ में जाते। सो रिटेनिंग हिम एट 11 इज वेरी गुड बाय। आयुष बदोनी 4 करोड़, रवि बिश्नोई 11 करोड़, क्या ये उतने के वैल्यू है? बिश्नोई की जहां तक बात आती है, बिश्नोई शायद चहल से तो कम ही दुनिया अभी तक उनके टैलेंट को नहीं समझ पाई है। बिश्नोई बैटिंग भी करते हैं, उन्होंने यूज नहीं किया कभी, और फील्डर एक्सीलेंट है, और बॉलिंग में शायद वो बहुत स्पेशल टैलेंट है। अच्छा। वो जब 19 खेले, 19 तो नहीं थे, बट आज वो किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा सेट है। अच्छा। और जहां तक बात है, आपने उनका नाम लिया, आयुष बदोनी बिकॉज आयुष बदोनी और मोहसिन खान दोनों को किया। इंडियन मोहसिन खान तो बहुत बड़ा टैलेंट, अगर उनको इंजरी 4 करोड़ साल पहले, वो 4 नहीं वो 10 करोड़ 10 का उसकी एल्बो की इंजरी होगी, रिकंस्ट्रक्ट हुई है। मोहसिन खान बहुत ही बढ़िया बॉलर है। Asset। बदोनी एट 4 इज आल्सो चीप, इज नॉट वेरी, मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर रहे हैं। 7-8 करोड़ जाते कहीं और। चलो ये सेगमेंट फिर अभी एंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है ऑक्शन में, पता फिलहाल कल जो है रिव्यूअर से बात कर ले। रोहन, आईपीएल इलेक्शंस में होता क्या है, 24 को मेगा ऑक्शन होंगी, उसके बाद भी कुछ चीज समीकरण बनेंगे, लेकिन जब सीजन शुरू होगा आप फिर होंगे, मेरे को लगता है इस बार आप पूरा लाइव जाने वाले हैं थ्रू आउट द सीजन। हाँ सही बात। केकेआर सपोर्टर हूं मैं, यहाँ पे केकेआर के लिए तो रहेंगे ही, भारतीय 10 की 10 टीम के लिए रहेंगे। हाँ। लेकिन 2 में केकेआर में भी एंड्रे रसल ना हो तो रोहन जी का मुंह इतना सा बन जाता है। फिलहाल इनके चेहरे पे स्माइल है, देखते हैं इन्होंने जो आंकलन किया है कि 24 तारीख को इस तरह से आईपीएल की फ्रेंचाइजीज जाएंगी, देखते हैं क्या होता है। आप श्योर हैं कि इस तरह से होने वाला है, मोर और लेस यही रहने वाला है। लगभग यही, क्योंकि यही प्लेयर्स हैं जो आपको हाई वैल्यू के जाते दिखेंगे, और भी कुछ टीम्स होंगी जो जाएंगी। मैं कुछ एज अ वेस्ट इंडियन फैन कुछ प्लेयर्स का यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जैसे अकील हुसैन है, एक बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आप जानते हैं उनको, ही कुड बी अ वेरी गुड बाय एज वेल। आप कहीं हैं कई प्लेयर जो अंडररेटेड हैं, शायद अभी लुइस है, ये सब भी जाएंगे अच्छे प्राइस में, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फिलहाल गुड लक टू द फ्रेंचाइजीज एंड वेरी गुड लक टू द फैंस। मे योर फेवरेट प्लेयर्स वॉक इनटू द फ्रेंचाइजीज यू वांट टू सी देम विद, एंड अभी हमारे पास इतना ही है रोहन। चलो ठीक, अगले बारी बाय। चलो थैंक यू।